Hello everyone and welcome to the course Water Resource Engineering and Hydrology. Myself Preeti Singh Patel, Civil Department from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Today we are going to discuss last part or remaining portion of hydrological parameters. So first of all, what is evaporation? So evaporation is the process by which water changes its state from vapor to the liquid, liquid to the gaseous or vapor state. Okay. So the amount of evaporation is depend upon different factors like temperature, wind velocity, surface area, nature of evaporating surface, area of water surface, and depth of water body. So Dalton's gave some law or gave law for evaporation. He said that the evaporation is proportional to the difference in a vapor pressure, which is saturation vapor pressure and actual vapor pressure. Okay, तो डाल्टन्स ने एक evaporation का law दिया जिसमें उसने बोला कि the evaporation is proportional to the difference in vapor pressure or that is saturation vapor pressure or actual vapor pressures. Okay. So what is saturation vapor pressure or what is actual vapor pressure or vapor pressure? So during the process of evaporation, water molecules water molecules continuously escape or leave the water surface. Because of leaving the surface, the motion of these molecules produce a pressure on the water surface which is known as vapor pressure. Okay, means जब आपका evaporation process start होती है means due to the heat of sun, जब आपका water liquid से gaseous state में convert होता है तो आपके क्या होता है continuously water molecules जो हैं वो continuously आपके water surface या water body को leave करते हैं. During the leave जब वो leave करते हैं water surface body को दैट टाइम जो मॉलिक्यूल्स है वाटर मॉलिक्यूल्स एक मोशन प्रोड्यूस करते हैं और मोशन की वजह से एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है ऑन द वाटर सरफेस दैट pressure is known as vapor pressure or actual vapor pressure. Okay, next, what is saturated vapor pressure? So if there is a continuous supply of heat energy, more and more molecules accumulate and the finally a stage is reached when the air above the free surface becomes saturated with vapors and it cannot accommodate more vapor. So during that time, the partial pressure exerted by the water vapor at that stage is called the saturation vapor pressure. ओके एंड डाल्टन्स ने स्टेटमेंट क्या दिया कि जो इवेपोरेशन है आपका वो इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है. ओके, so this is your Dalton's law equation where E is your daily evaporation, K is your constant. So next topic, factors affecting evaporation or what are the factors which affect the rate of evaporation. Okay, so the rate of evaporation depends upon the number of factors. First is water surface area. So evaporation is a surface phenomena and the quantity lost through evaporation from water stored therefore depend upon directly on the extent of its surface exposed to the एटमोसफेयर. ओके, जो आपका इवेपोरेशन का रेट है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. ओके, सो देयर आर सम फैक्टर्स. फर्स्ट इज वाटर सरफेस एरिया. तो जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा क्योंकि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आपकी वाटर बॉडी को एस्केप करेंगे फ्रॉम वाटर बॉडी टू एयर और एटमोसफेयर. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर. So the evaporation increase with increasing in air temperature. Okay, so due to which in summer season or in hot country the evaporation will be more as compared to the winter season or in a cold country. Okay, क्योंकि आपके इवेपोरेशन किसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. ओके, यानी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. ओके, next is the quality of water. So the salt contained in water affect the rate of evaporation. Experimental study shows that the rate of evaporation decrease with increasing in salt contained in water. Okay, अगर आपके वाटर में impurities है, कोई dissolved solid produce प्रेजेंट है. ओके, अगर आपके वाटर में कोई डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट है या इम्प्योरिटीज ऑलरेडी
प्रेजेंट है, तो इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगा। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ये बोलती है कि आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन आपके सॉल्ट कंटेनिंग इम्प्योरिटीज होने की वजह से उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है अराउंड 2 to 3। Next is atmospheric pressure. So a decrease in the atmospheric pressure increase the rate of evaporation because there are fewer molecules in the air above the free surface to cause its interference. Okay, यानी आपका atmospheric pressure अगर कम होगा तो आपका rate of evaporation ज़्यादा होगा। Next is vapor pressure. So अभी हमने पढ़ा था Dalton's law. Dalton's law क्या बोल रहा है? The rate of evaporation is proportional to the difference between the vapor pressure and the saturation vapor pressure. Okay, तो आपके vapor pressures पे भी depend करेगा। So next method for determining evaporation. So the rate of evaporation from large water surface bodies like river, ponds, lake, etc. can be determined by different method using evaporation pan, using empirical formula, using water budget method and energy method. So first of all, what is evaporation pan? Okay, so evaporation pan is used to hold water during observation for the determination of evaporation at a given location. Okay, such pans are varying size and shape and the most commonly used being circular or square. Okay, and the best known of the pans or the uh, classification of the pan is class A evaporation pan, Sunken Colorado pan, Simon's pan and ISI standard pan. Okay, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिटरमाइन करने के बहुत से मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आपका यूजिंग इवेपोरेटिंग पैन्स और इवेपोरेशन पैन। व्हाट इज इवेपोरेशन पैन? इवेपोरेशन पैन जो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप का एक पैन होता है जिसमें हम वाटर को होल्ड रखते हैं और उसको हम फिर एटमोसफेयर में फ्रीली प्लेस करते हैं, जिससे आपका वाटर कितना क्वांटिटी में इवेपोरेट है वो हम मेजर करते हैं। ओके, so this is the most reliable or easiest method for the determination of evaporation, for the determination of the rate of evaporation. Okay, first classification of evaporation pan is class A evaporation pan. So it is a standard pan of 1210 mm diameter and 2 to 5 meter mm depth used by the US Weather Bureau, and it is known as class A land pan. Okay, so in this pan, the water level or depth of the water to be maintained between 18 centimeter and 20 centimeter, and the pan is made of unpainted galvanized iron sheet. Okay, इस फिगर से आप इसकी डायमेंशन देख सकते हो. You can see the dimension from this figure. Okay, इसमें क्या है आपका अनपेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के मटेरियल का एक सर्कुलर पैन है जिसको हम वुडन प्लेटफॉर्म पे प्लेस करते हैं, और वुडन प्लेटफॉर्म की डेप्थ है 15 सेंटीमीटर। हम वुडन प्लेटफॉर्म पे क्यों प्लेस करते हैं? जिससे आपका एयर का फ्री सर्कुलेशन मेंटेन रहे, या एयर का फ्री सर्कुलेशन मेंटेन रहे बिलो द पैन। ओके, देन हम उसमें क्या करते हैं, वाटर इनिशियली फिल करते हैं एक सर्टेन हाइट तक। ओके, इसमें हम नॉर्मली वाटर 18 to 20 सेंटीमीटर मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 20 सेंटीमीटर में वाटर फिल कर रही हूँ, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ड्यू टू हीट ऑफ द सन आपका कुछ क्वांटिटी वाटर लॉस्ट होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर आप कुछ टाइम इंटरवल पे लाइक पहले 1 आवर या 2 आवर आपके अकॉर्डिंग हम उसको नॉर्मल स्केल्स के थ्रू मेजर करेंगे। तो हम इसका जो मेजरमेंट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, जो हमने वाटर फिल किया और कुछ टाइम पीरियड बाद आपका कितना वाटर इवेपोरेट होगा, तो उसके बाद का वाटर टेबल। तो फर्स्ट जो रीडिंग है उसको सेकंड रीडिंग से माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपका कितना वाटर इवेपोरेट हुआ। ओके, नेक्स्ट ISI स्टैंडर्ड पैन। तो this pan evaporimeter specified by IS 5973 1970 and also known as modified class A evaporation pan. It consists of 255 mm of depth pan with 1220 mm in diameter, and the pan is made of again copper sheet 0.9 mm thickness and tipped inside and painted outside. The pan is placed over a square wooden platform.
ओके, ISI स्टैंडर्ड पेन जो आपका क्लास ए पेन था, जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, उसका मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे आपकी इसकी डायमेंशन मेंशन है, दिस इज इट्स डेप्थ, ये डायामीटर इतना होना चाहिए। और ये जो पेन है वो आपका पेन गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का बना था, ये पेन आपका कॉपर शीट का था जिसकी थिकनेस 0.9 है। सेम इसको वुडन प्लेटफॉर्म पे हम प्लेस करते हैं, जिससे आपका पेन के नीचे आपका फ्री एयर सर्कुलेशन मेंटेन रहे। देन इस पेन में एक स्मॉल स्टिलिंग बेसिन प्रोवाइड करते हैं। स्टिलिंग बेसिन में एक फिक्स पॉइंट गेज प्रोवाइड करते हैं फॉर मेजरिंग द वाटर लेवल इन द पेन। ओके, so yeah, a fixed point gauge indicates the level of water. A calibrated cylinder measure is used to add or remove water, maintaining the water level in the pan to fix one. Okay, sometimes the top of the pan is covered fully hexagonal wire netting of galvanized sheet to protect the water in the pan from burns. Okay, so because of this, the evaporation from this pan is found to be less by about 14% compared to that of unscreened pan or a class A evaporation pan. Okay, sometime हम क्या करते हैं, ISI स्टैंडर्ड पैन में इसको बर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए वायर मैश की एक नेट वायर मैश प्रोवाइड करता है, यानी कवर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसका जो इवेपोरेशन रेट है वो 14%, ऑलमोस्ट 14% आपकी जो अनस्क्रीन पैन है लाइक ग्लास इवेपोरेशन पैन है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, next is Colorado sunken pan. So this pan is 460 mm deep, 920 mm square, made up of an unpainted galvanized iron sheet. Okay, and it is buried into the ground within 100 mm of the top. Okay, the advantage of this pan is that the radiation and aerodynamic characteristics are similar to those of lake. Okay, colloidal circum pan की जो evaporation rate है वो almost आपके लेक या वाटर बॉडी से रिलेटेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेडिएशन और एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट आपके लेक से वाटर बॉडी से सिमिलर है, क्योंकि इसे हम ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं 100 mm डेप्थ तक। ओके, सो हाउएवर इट हैविंग द सम फॉल एडवांटेज, इसकी वजह से इसके सब एडवांटेज भी एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? तो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट लीक्स, क्योंकि हम इसे ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं, बरिड करते हैं कुछ डेप्थ तक, तो डिटेक्ट लीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, अगर सरफेस पर हो तो इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, मगर अगर हम इसे ग्राउंड में बरिड कर रहे हैं, कुछ डेप्थ तक इंसर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं, तो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट लीक। देन एक्स्ट्रा केयर इज नीडेड टू कीप द सराउंडिंग एरिया फ्री फ्रॉम टॉल ग्रास एंड डस्ट। ओके, आपका जो जहाँ पे हम कोलाइडल सनकन पैन प्लेस कर रहे हैं उस एरिया के अराउंड अगर आपका टॉल ग्रास है, डस्ट है, तो उसकी वजह से इसके इवेपोरेशन रेट में चेंजेस हो सकते हैं, या वो आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को फ्लक्चुएट कर सकता है, या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें जो उसके सराउंडिंग जो है उसकी वजह से हमें उसके एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। लास्ट वन इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोलाइडल सनकन पैन। नेक्स्ट इज पैन कोफिशिएंट। सो इवेपोरेशन पैन्स और जो भी हमने अभी पढ़े ISI स्टैंडर्ड पैन, कोलाइडल सनकन पैन या क्लास इवेपोरेशन पैन आर नॉट द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ लार्ज रिजर्व, बिकॉज एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक और आपकी जो रेडिएशन कैरेक्टर वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी वो डिफरेंट है। ओके, इवेपोरेशन पैन्स क्या है, आपका एक स्मॉल साइज पैन है, एक लिमिटेड डेप्थ तक का वाटर, अगर आपकी जो वाटर बॉडी जिनमें से एक्चुअली इवेपोरेशन हो रहा है, जिसके मेजर करने के लिए हम इवेपोरेशन पैन यूज करें, वो आपकी लार्ज वाटर बॉडी है, तो उसके लिए आपका हीट स्टोरिंग प्रॉपर्टी, हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी, देन आपकी साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आपका जो विंड एक्शन है वो सब डिफरेंट होगा, इवेपोरेशन पे पैन पे डिफरेंट होगा और आपके लार्ज रिजर्वर पे डिफरेंट। तो उसकी वजह से जो आपका इवेपोरेशन रेट है मे बी आपका पेन में कम आए, मे बी आपका पेन में ज्यादा हो, और आपका वो एक्चुअल वाटर बॉडी पे इतना ना हो। तो इस ड्रॉबैक की वजह से या इस रीजंस की वजह से हमें पैन कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ओके, so evaporation pan are not the exact model of a large reservoir. Because of it, the evaporation measured on a evaporation pan is more than that from a reservoir or a lake. Okay, यानी आपका evaporation pan exact model नहीं है due to some reasons.
ठीक है, उसका साइज छोटा है, उसका आपका विंड एक्शन डिफरेंट है, उसकी हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज अलग है, उसकी वजह से वो आपके लार्ज रिजर्वायर के कंपेयर में इवेपोरेशन पैन में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो उस ड्रॉबैक को रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेजर्स लेते हैं, तो वो है हमारा पैन coefficient. Okay, so pan coefficient is defined as the ratio of lake evaporation and pan evaporation. So where Cp is your pan coefficient. Okay, अगर हम pan coefficient की बात करें तो what is it? It is the ratio of the lake evaporation versus pan evaporation. Okay, next, empirical formula. So using empirical equations or formula, we can determine the rate of evaporation. So here are some empirical equation or formula. From this, you can find out the rate of evaporation. Okay. So Mayer's gave this formula. This is the equation of Mayer's formula, where E is your evaporation, E is your actual vapor pressure or vapor pressure, ES is your saturated vapor pressure. U9 is your monthly mean wind velocity in kilometer per hour at about 9 meter above ground. Okay, and KEM is your coefficient. Okay, which varies according to water body. So 0.36 for large deep water body and 0.50 for small or shallow water. Next, Rovers gave this formula. So where PA is a mean barometric reading, okay, and u0 is a mean wind velocity in kilometer per hour at a ground level, which can be the velocity at 0 point meter height above ground. Next is transpiration. So transpiration is the process by which the water vapor or water escape from their leaves, stalks and trunk in the process of their growth. Okay, as much as of the 90% of the total water received uh, by a plant through its root, it is lost to the atmosphere by this process, and transpiration mainly occurs during a daylight hours. Okay, so due to the heat of sun, आपका जो plant से water lost होता है, water vapor escape होते हैं through leaves, stalks and trunk, उस process को हम बोलते हैं transpiration. Transpiration normally आपका daylight hours में होता है. Okay, so transpiration, there is some transpiration ratio, which is ratio of weight of water transpired divided by weight of dry matter produced. Okay, so value of transpiration ratio is for a different crop. It may vary from 300 to 800, and for rice it's vary from 600 to 800. Okay, कि आपका water जो rice है उसमें water content ज़्यादा लगता है, उसकी फुल ग्रोथ के लिए वाटर ज़्यादा लगता है, इसलिए आपका जो राइस के लिए ट्रांसपिरेशन रेशियो है वो कंपेयर टू द आपके अदर क्रॉप्स के कंपेयर में ज़्यादा है. ओके, सो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन ड्यू टू द हीट ऑफ सन. आपके जो वाटर है, वाटर वेपर जो वो आपकी प्लांट्स की लीव्स से या उसके ट्रंक से या फिर उसके स्टॉक से स्केप होते हैं इस प्रोसेस. Next factor affecting the rate of transpiration in plants. So first is temperature. So transpiration increase with increasing in air temperature. As the temperature increase, there is increase of aqueous vapor pressure of leaves and the transpiration increase. Okay, जैसे जैसे temperature बढ़ेगा वैसे वैसे आपका transpiration losses बढ़ेंगे. Obviously बात है क्योंकि due to the heat of sun हो रहा है, daylight में हो रहा है, तो आपका temperature increase से आपका transpiration बढ़ेगा. Next है आपका light. So increase in light intensity raise the temperature of leaf cell and thus increase the rate of transpiration. Obvious है, light बढ़ेगा यानी heat बढ़ेगी, heat की वजह से आपका temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा तो transpiration losses ज़्यादा होंगे. Next relative humidity. So increase in atmospheric humidity decrease the rate of transpiration. Next wind. So more the wind velocity in the atmosphere, more is the rate of transpiration. Next, water content of the soil. So sufficient ability of water in the soil allows stomata to remain open and thus help transpiration to continue at a faster rate. Okay, यानी water content of the soil में अगर आपका enough है या ज़्यादा है तो it means आपका transpiration losses भी ज़्यादा होंगे. And last one is concentration of carbon dioxide
The decrease in the amount of carbon dioxide in the atmosphere favors the opening of stomata and thus increase the rate of transpiration. Okay. Next, measurement of transpiration. So there are various methods are used by biologists to measuring the transpiration, but the best method is phytometer method, which is generally adopted by an engineer. Okay, what is phytometer? So it is the most important widely used method. It consists of a closed watertight tank with sufficient soil for a plant growth with only the plant exposed. Okay, then water is applied artificially till the plant growth is completely done. Okay, and then starting the equipment is weighted in the beginning, which is W1, and the end of the experiment, which is W2, and the water applied during the full growth of the plant is W is measured, and the water consumed by transpiration is obtained by this equation. तो वैसे इस फाइटोमीटर में हम क्या करते हैं, वाटर टाइट टैंक लेते हैं, उसमें सफिशिएंट सॉइल की फिलिंग करते हैं, फिर अपना प्लांट प्लेस करते हैं. ठीक है, तो इनिशियली हम वेट लेते हैं पहले अपना वाटर टाइट टैंक का और सॉइल का, जिसे हम बोलते हैं W1. ठीक है, उसके बाद हम उसको सफिशिएंट क्वांटिटी वाटर अप्लाई करते हैं जो उसकी फुल ग्रोथ के लिए इनफ है, उसे हम बोलते हैं W. ठीक, फिर आपका फुल ग्रोथ होने के बाद आप के प्लांट का वेट लेते हैं विद वाटर टाइटेन, वो है आपका W2. तो उसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज ट्रांसपिरेशन लॉसेस. ओके, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम ट्रांसपिरेशन लॉसेस फाइंड आउट कर सकते हैं. Evapotranspiration. So evapotranspiration or consumptive use is the total water lost from a crop or a land due to evaporation from the soil and transpiration by the plant or used by the plant in building up a plant tissue is known as evapotranspiration. Okay, from this figure you can see what is evapotranspiration. It is a sum of water loss to the atmosphere by the plants, यानी transpiration के through जो आपका plant से water lost हो रहा है, and water evaporated from the soil. Okay, यहाँ से soil से or water body surrounding the plant is known as evapotranspiration. Okay, simple sense में कहें तो it is a sum of transpiration and evaporation. Okay, next or important topic is infiltration. What is infiltration? So when rain falls on the ground, it first wets the vegetation or the bare soil. If the soil is porous, the water moves through the soil into the surface, through the surface into the soil is known as infiltration. Okay, जब आपका precipitation होता है या rainfall होता है, तो first of all क्या होता है, आपका rain first आपके जो surface है, ग्राउंड सरफेस है, उसको वेट करता है. फिर चाहे आपका वहाँ पे वेजिटेशन हो चाहे आपकी बेयर सॉइल, फर्स्ट वो उसको वेट करता है. अगर आपकी सॉइल पोरस है यानी उसमें वॉइड्स है, तो वाटर क्या करता है, मूव्स थ्रू सरफेस, इस सरफेस से मूव थ्रू द सॉइल और द सॉइल मास, उस फ्लो को बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन. सिंपल सेंस में क्या है, तो इनफिल्ट्रेशन इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर from soil surface to the soil mass through the pores of soil. Okay, समझ आया what is infiltration? Downward movement of water from surface to the soil mass. Okay, surface से soil mass में जो downward movement हो रहा है water का, okay, उसको हम बोलते हैं infiltration. This happen when the soil is porous. ये कब होगा, जब आपकी soil porous होगी. Okay, so once the water has infiltrate, it moves through the soil. अगर आपका water infiltrate हो गया, soil surface से soil mass में आ गया, उसके बाद water infiltrate होने के बाद भी आपका water अगर या soil के through move कर रहा, it reach the zone of saturation or a water table, that is known as percolation. Okay, तो फिगर में दिख रहा होगा कि downward movement of water from soil surface to the soil mass is your infiltration. But after the infiltration, आपका infiltrate हो गया water, उसके बाद भी आपका water soil के through move कर रहा हो downward, तो और जो आपका water table या आपके saturation zone को meet कर रहा है, उसको हम बोलते हैं percolation. So I think आप लोग को infiltration और percolation में difference समझ में आ गया. Okay.
Next is infiltration capacity. So the maximum rate at which the soil in any given condition is capable of absorbing water is called its infiltration rate. It is also defined as the maximum rate at which water will enter the soil in a given condition. Okay, infiltration capacity कितने maximum rate से आपकी सॉइल वाटर के अंदर जा रही है, कितने मैक्सिमम रेट से आपकी सॉइल उस वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, उसे हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, विच इज डिनोटेड बाय एफ पी. ओके, नेक्स्ट है आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट. सो द इन्फिल्ट्रेशन रेट at any instant is the rate at which water actually enters the soil during the storm, and it is equal to the infiltration capacity or the rainfall capacity. Normally, the rate of infiltration begins at a high rate and decreases at a fairly steady state as the rate continues. Okay, and that is called ultimate. Okay, normally क्या होता है जब आपका precipitation हो या rainfall आता होता है, तो आपका जो इन्फिल्ट्रेशन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस टू द सॉइल मास थ्रू द पोर्स ऑफ द सॉइल, ओके, वो स्टार्टिंग में आपका हाई रेट पे होता है क्योंकि सॉइल आपकी अनसेचुरेटेड और ड्राई कंडीशन में होती है. ओके, मगर जैसे जैसे आपका रेन कंटिन्यू रहता है और जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, आपका इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीज होता है क्योंकि सॉइल क्या होती है आपकी सैचुरेटेड होना स्टार्ट होती है. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का. ओके, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में आपका इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा है, मगर जैसे जैसे आपका टाइम पासेस हो रहा है वैसे क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है. ओके, so the infiltration depend upon the several factors like duration of rainfall, permeability, percolation characteristic of soil, soil moisture, temperature, intensity and duration of rainfall, vegetation cover. Okay, तो इन सब पे आपका इन्फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है. अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर, ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो मे बी आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू अगर आपका लो टेम्परेचर हो. देन आपकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल हो तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर शॉर्टर ड्यूरेशन का तो इन्फिल्ट्रेशन कम होगा. okay, तो इन फैक्टर्स पे आपका इन्फिल्ट्रेशन डिपेंड्स करता है, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा. Next topic or important topic, infiltration index or indices. So in hydrological calculation involving flood, it is found convenient to use a constant value of infiltration rate for the duration of the storm. Okay, ये सब infiltration, hydrograph या run off patterns की study हम क्यों करते हैं, for अपना flood की analysis करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा rainfall होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका रन ऑफ जनरेट होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके फ्लड के. और रन ऑफ कब जनरेट होगा, जब आपकी सॉइल सारे लॉसेस को सेटिस्फाई करेगी. और सारे लॉसेस में आपका क्या कहता है, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, इनिशियल लॉसेस. ओके, यानी आपकी सॉइल की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद आपका ग्राउंड पे वाटर फ्लो करेगा ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रन ऑफ. और जब रन ऑफ ज़्यादा जनरेट होगा तभी फ्लड कंडीशन. तो इट इज़ फाउंड कन्वीनियंट कि यूज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ इल्ट्रेशन रेट. ओके, अब हमें तो पता नहीं कि सब सॉइल का हम मेजर तो कर नहीं सकते कि भाई इतना फिल्ट्रेशन हो रहा है इतना नहीं, तो ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म हमने ऐसा कंसिडर कर लिया. या कन्वीनियंट मेथड है कि हम हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के लिए कंसिडर कर दे कि जो आपके सॉइल में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और फिल्ट्रेशन हो रहा है उसकी वैल्यू हम कांस्टेंट कंसिडर कर लें. ओके, so what is infiltration index? So infiltration index is the average rate of loss such that the volume of rainfall in excess of that rate will be equal to a direct runoff. Okay, infiltration index क्या है, average rate of loss, यानी कितने रेट से, average रेट से आपका water lost हुआ, इसे हम बोलते हैं infiltration है. That is the volume of rainfall in excess of that rate will be equal to a. तो उसके बाद जो आपका rainfall excess है वो डायरेक्टली आपका डायरेक्ट रन ऑफ बन जाए. Okay, so there are two type of infiltration indices or index, phi index and W index. So first of all, what is W index? So W index is the average infiltration rate during the time rainfall intensity exceed the infiltration capacity rate. Okay, W index is average infiltration rate. Okay, so from this equation you can determine the W index. P minus R minus SR, where P is your total rainfall or total precipitation, R is your surface runoff, or SR your effective surface retention or
losses, okay, and TR is your duration of storm, okay. Normally W index is more accurate than compared to the phi index because it excludes the interception and depression losses which are considered as a part of infiltration in later, okay. आपका जो W index है वो कंपेयर टू phi index उसकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि हम W index में इंटरसेप्शन और डिप्रेशन लॉसेस को कंसिडर नहीं करते क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके इन्फिल्ट्रेशन का ही पार्ट बनते लेटर, बट W इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन द phi इंडेक्स, ठीक है। मगर हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आप देखना कि आपका W इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज लेस देन द phi इंडेक्स because it is difficult to estimate the depression and interception losses, okay. Next, phi index. So phi index is the average rate or average rainfall above which the rainfall volume is equal to the runoff volume, and the phi index is derived from the rainfall hydrograph with the knowledge of the resulting runoff volume, and the initial loss is also known as considered as infiltration, okay. What is phi index? Average rainfall above which the rainfall volume becomes your runoff volume is known as phi index, okay. तो phi index को समझने के लिए हमें हाइड्रोग्राफ को समझना पड़ेगा. So this is your हाइड्रोग्राफ. So it is a bar graph between the rainfall intensity versus time. Rainfall intensity versus time के बीच का जो ग्राफ है हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ, ओके. पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका कितना रेनफॉल थी उसका ग्राफ है. तो व्हाट इज phi इंडेक्स, ये क्या बोल रहा है? एवरेज रेनफॉल above which the rainfall volume is become equal to the runoff volume. यानी इतना अगर आपका इन्फिल्ट्रेशन हो, यानी इतना वाटर आपका सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद इतना ही वाटर आपका सरफेस पे फ्लो कर रहा है. तो ये जो एवरेज रेनफॉल और रेनफॉल है वो डायरेक्टली आपका क्या बन जाता है? रन ऑफ, ओके. तो वही बोल रहा है इस इक्वेशन में, द phi इंडेक्स इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच, उसके बाद जो भी आपका रेनफॉल का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली आपका रन ऑफ वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका phi इंडेक्स जिसे हम बोल रहे हैं लॉसेस, ओके. सो phi इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन P minus R TR, where P is your total rainfall, R is your surface retention, okay. Oh sorry, surface runoff, and TR is your duration of storm. So here's the example of infiltration index. So आपको क्वेश्चन गिवन है, a storm with 20 centimeter precipitation produced a surface runoff of 11.6 centimeter. Estimate the phi and W index, okay. तो क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको टोटल प्रेसिपिटेशन दिया है और सरफेस रन ऑफ दिया है, हमें W एंड phi इंडेक्स डिटरमाइन करना है, ओके. हम टाइम एंड रेनफॉल इंटेंसिटी दिया, यानी पर्टिकुलर टाइम में आपका कितना रेनफॉल हुआ वो डेटा आपको गिवन है. तो फर्स्ट करेंगे विद रेफरेंस टू फिगर इन प्रीवियस स्लाइड. आपकी जो प्रीवियस स्लाइड में आपका इन्फिल्ट्रेशन का जो फिगर था हाइड्रोग्राफ, उसके रेफरेंस में द phi इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय एरर एंड ट्रायल मेथड, ओके. सो लेट अस अज्यूम दैट द इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स और इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस इज ग्रेटर देन 0.8 एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर, ओके. तो हमें अज्यूम करना है कि हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन था वो 0.8 से ज़्यादा है मगर 1 सेंटीमीटर से कम है. इट मीन्स इससे कम का जो रेनफॉल है उसमें आपका इन्फिल्ट्रेशन रन ऑफ जनरेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर इससे कम है. तो इट मीन्स सारी वैल्यू हमको कंसिडर करनी है क्योंकि हमारा अजम्पशन ये है कि आपका इन्फिल्ट्रेशन इससे ज़्यादा है मगर इससे कम है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेसिपिटेशन जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर माइनस सरफेस रन ऑफ डिवाइड बाय ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म, ओके. वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ गया 1.085, ओके. अब हमें कंपेयर करना है जो हमने अजम्पशंस लिया है. तो ये वैल्यू आपकी जो आपने अज्यूम किया था कि आपका इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स सॉरी 1 सेंटीमीटर से मोर देन नहीं होना चाहिए, बट हमारा आंसर ऐसा नहीं है, हमारा ज़्यादा है. इट मीन्स ये जो हमने अजम्पशंस लिया है सेकेंड ट्रायल में हम ले रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और phi इज बिटवीन 1 एंड 1.8 सेंटीमीटर, मीन्स the infiltration losses is greater than 1 centimeter but less than 1.8 centimeter, okay. तो हमें अज्यूम करना है कि आपका जो लॉसेस हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रेनफॉल से ज़्यादा है मगर 1.8 सेंटीमीटर से कम है. तो जो आपकी 1 से कम की रेन है उसको हम एक्सक्लूड कर दें क्योंकि वो रन ऑफ ही नहीं जनरेट करने वाला क्योंकि सब वाटर वो सॉइल एब्जॉर्व कर लेगी, ओके. तो हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे P माइनस R, ओके. खाली वही प्रेसिपिटेशन लेंगे
जिसकी वैल्यू 1 से कम होगी वो वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देंगे और रिमेनिंग वैल्यू को ऐड करके सरफेस रन ऑफ से माइनस कर देंगे। आपका वैल्यू है 1.1। कंपेयर करेंगे, आपकी वैल्यू रेंज में है, इट मीन्स आपका इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स है 1.1 सेंटीमीटर पर आवर। देन डब्ल्यू इंडेक्स के लिए वैल्यूज पुट कर दो, आपको मिल जाएगा डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है, सरफेस रिटेंशन गिवन नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। सो एक और एग्जांपल है। सो द रेट ऑफ रेनफॉल फॉर सक्सेसिव 30 मिनट्स पीरियड ऑफ 4 आवर्स स्टॉर्म are given. So taking a value of phi index is 4.5 centimeter per hour. Compute the total rainfall axis and W index. Okay. आपका 30 मिनट्स टाइम पीरियड में 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल का आपका रेनफॉल दिया है। ठीक है, आपका वो बोल रहा है कि फाइ इंडेक्स यानी इनफिल्ट्रेशन लॉसेस है 4.5 सेंटीमीटर। आपको क्या कंप्यूट करना है? टोटल रेनफॉल एक्सेस मींस डायरेक्ट रन ऑफ और डब्ल्यू इंडेक्स। ओके, तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज टोटल रेनफॉल। तो टोटल रेनफॉल के लिए क्या करेंगे, सब वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक है, मगर हमारी रेनफॉल इंटेंसिटी किसमें दी है, सेंटीमीटर पर आवर, मगर हमें जो रेनफॉल का डेटा दिया है वो 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल पे दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो आपका टोटल रेनफॉल आ गया। देन टोटल रेनफॉल एक्सेस, तो टोटल रेनफॉल एक्सेस की बात करें या डायरेक्ट रन ऑफ, तो डायरेक्ट रन ऑफ आपका कब जनरेट होगा, जब आपके इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद। और इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, यानी इससे कम का जो रेनफॉल की डेप्थ है उसमें आपका डायरेक्ट रन ऑफ जनरेट ही नहीं होने वाला, यानी उन वैल्यू को तो हम रेनफॉल एक्सेस में कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो जो वैल्यू आपकी 4.5 सेंटीमीटर से कम है वो आपके रेनफॉल एक्सेस में नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि उतना तो पानी आपका सॉइल में चला, तो वो रन ऑफ कहाँ से जनरेट करेंगे। ओके, तो टोटल रेनफॉल एक्सेस निकालना है, इट मीन्स ये वैल्यू एक्सक्लूड करो, ये एक्सक्लूड करो और ये एक्सक्लूड करो और रिमेनिंग वैल्यूज को ऐड कर दो, और सॉरी माइनस टू इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स कर दो। 6.5 माइनस 4.5, 8.5 माइनस 4.5, 7.8 माइनस 4.5, 6.4 माइनस 4.5 एंड 6 माइनस 4.5। ठीक है, सेंटीमीटर पर आवर, और आपके 30 मिनट के टाइम इंटरवल पे दिया है तो इसलिए 30 डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो आपका टोटल रेनफॉल एक्सेस कितना हुआ, 6.35। ओके, यानी टोटल रेनफॉल आपका था 23.35, और जिसमें से खाली रेनफॉल एक्सेस जो हो रहा है वो खाली इतना हो रहा है, यानी खाली इतना ही आपका रन ऑफ जनरेट हो रहा है। आप क्या निकालना है हमको, डब्ल्यू इंडेक्स। तो आपको रेनफॉल मिल गया, टोटल रेनफॉल मिल गया, यहाँ से आपको रन ऑफ मिल गया, पुट कर दो वैल्यू, तो P माइनस आर माइनस एस आर, तो P आपका टोटल रेनफॉल, एस आपका सरफेस रन ऑफ, एस आर आपको गिवन नहीं है तो इट इज 0, और टोटल आवर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म इज 4। पुट कर दो वैल्यू, कैलकुलेट करो तो 4.2 सेंटीमीटर पर आवर। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाया है। ओके, तो ये आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है। यहाँ पे आपका इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज है, तो यानी 4.5 सेंटीमीटर से कम की जो रेन है तो आपका रेनफॉल एक्सेस या डायरेक्ट रन ऑफ जनरेट नहीं है, तो खाली इतने पोर्शन से ही आपका रन ऑफ जनरेट होगा। ओके, लास्ट टॉपिक इज method of determining infiltration. So there are many control experiment conducted on a small area using infiltrometer on rain simulators. Okay? So there are two types of infiltrometer, single ring and double ring. Okay, so single ring infiltrometer test was conducted using 15 centimeter and 30 centimeter rings. First of all, the ring is driven into the soil approximately 12 to 14 inches into the soil, and then water is poured into the ring that above the soil surface, and in some cases the above surface of the ring is covered to avoid evaporation. For measuring the depth of water in a ring, we need a hook gauge, scale, steel tape, and we should take care of a ring while it is driven into the ground. There may be chances of having hapless connection between the thin wall of ring and सॉइल। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इन्फिल्ट्रोमीटर लेते हैं, उसको हम सॉइल में इंसर्ट करते हैं कुछ डेप्थ तक,
अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 इंचेस इनटू द सॉइल। उसके बाद मैनुअली उसमें वाटर फिल करते हैं। देन वाटर की डेप्थ स्केल या स्टील गेज, हुक गेज या स्टील टेप्स के थ्रू हम मेजर करते हैं। और जैसे जैसे वाटर आपका डिक्रीज होता है वैसे उस टाइम पीरियड के इंटरवल पे हम वाटर ऐड करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यू टिल द इनफिल्ट्रेशन रेट और यूनिफॉर्म रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। ओके, फर्स्ट क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं कुछ सेकंड्स पे या मिनट्स के टाइम इंटरवल में हम रीडिंग लेते हैं कि 1 मिनट में आपका कितना वाटर ड्रॉप डाउन गया, सेकंड 2 मिनट पे कितना। हमें तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक आपका जो ये रीडिंग है या लाइक पर आवर या पर 30 मिनट्स आपकी जो रीडिंग है वो कांस्टेंट ना आ जाए, यानी आपका जो इन्फिल्ट्रेशन का रेट है वो यूनिफॉर्म ना आ जाए, तब तक हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बट this infiltrometer have some drawback or disadvantages. So what are the disadvantages? The infiltrator water is spread at the bottoms of the cylinder and hence the effective area of flow is considerably greater than the base area. Okay, आपका सिंगल रिंग है तो जब हम वाटर फिल करते हैं तो आपका वाटर सॉइल में जो है वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होता है, जितना इसका बेस है या सरफेस एरिया उससे ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होता है। तो इसकी वजह से इसकी जो रिजल्ट है उसकी एक्यूरेसी लो है। तो इसको करने के लिए या इसे ओवरकम करने के लिए हम डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर यूज करते हैं। इसमें आपका डबल रिंग प्रोविजन होता है। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेम डबल रिंग को हम इंसर्ट करते हैं सेम लेवल पे हम वाटर फिल करते हैं। देन स्केल और गेज का यूज करके हम वाटर लेवल मेजर करते हैं सर्टेन टाइम इंटरवल पे और तब तक टेस्ट कंटिन्यू रखते हैं जब तक आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट ना हो जाए। ओके, so today I'm gonna to stop here. Here your first module hydrological parameter is completed. Okay, if you have any query, any doubt, feel free to ask me. Okay, so thank you.